In the name of Allah, the Rahman and the Rahim, dear students and viewers, Assalamu alaikum. Welcome you all in today's lecture. Topic for today's lecture discussion is memo writing. That how we can write a memo, and we will be discussing that what are the key differences between memo writing and letter writing. Dear students, as we know that there are many types and tools for official communication. There are many types of official communication, each suited to specific situations. Yes, we required specific writing, specific type of writing, official writing for a specific situation. One such popular form of communication is a memo. Official writing, we can call memo, is one of the types of official writing. Let's define that what is a memo. A memo is actually short for memorandum. It's the short form of memorandum. It is one of the most used means of official communication in the business world or inside the organization. हम मेमो लिखते हैं, ठीक है. It mean its main purpose is to serve as a reminder or to give some instructions. जब हम वर्कर्स को कुछ रिमाइंडर्स देते हैं या उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस, हिदायत देते हैं, तो हम फिर उनको मेमो लिखते हैं, ठीक है, मेमोरेंडम लिखते हैं. Like again, these like circulars are a means of mass communication. That is, to communicate with a large number of people within the organization. Dear students, ये आप याद रखें कि हम मेमो लिखते हैं. मेमो एक टाइप ऑफ राइटिंग है, ठीक है, जो इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन हम एम्प्लॉइज के लिए लिखते हैं. फॉर एग्जांपल इनसाइड यूनिवर्सिटी जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, उनके लिए जब हम लिखते हैं तो मेमो लिखेंगे, ठीक है. इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल कॉलेज में आप देखिए या किसी और इंस्टीट्यूशन में आप देखिए, ठीक है, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स लिखते हैं, नर्सेस को लिखते हैं, ठीक है, ताकि सबको इन्फॉर्म किया जाए. ओके, सो यूजुअली memo is we are writing memo for these purposes or for these reasons is a reminder. जब हम किसी को रिमाइंडर देते हैं, मेमो लिखते हैं, आर टू हाईलाइट इन इवेंट आर सर्कमस्टांसेस, आर टू रिकाउंट इन इवेंट, कीप एन ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ एनीथिंग, टू पास इंफॉर्मेशन आर इंस्ट्रक्शंस टू अदर्स, ठीक है. ये दीज आर द रीजंस फॉर राइटिंग मेमोज. Like dear students, these are the advantages of memo writing. They are a very cost-effective way of mass communication, and they are transmitting. And their transmission is very cheap, not very expensive. Another advantage is its simplicity. That memo writing is very simple writing. They are very simple to write and understand. Okay, सब लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. टेक्निकल वोकेबलरी यूज नहीं करते हैं हम. मेमोज टेंड टू बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट. यस, ये अनदर एडवांटेज है, ठीक है. दे आल्सो सर्व एज एविडेंस इन केस ऑफ अ डिस्प्यूट. यस, जिस तरह कि हमने अभी पढ़ा कि ये हम ऑफिशियल रिकॉर्ड के तौर पर रखते हैं. सो जब हमें एविडेंसेस की ज़रूरत हो तो हम मेमो को यूज़ कर सकते हैं. एज वी नो, a memo, also known as memorandum or reminder, dear students, is used for internal communications. Yes, inside the organization, inside the institutions, जो हम internal communication करते हैं, ठीक है, सो उसमें हम मेमो लिखते हैं. Regarding procedures or official business within organization, unlike in email. Yes, हम ईमेल के ज़रिए भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, या और मतलब टूल्स भी, मीन्स भी हम यूज़ करते हैं. व्हाट्सएप हम यूज़ कर सकते हैं, या मतलब किसी को आप टेलीग्राम के ज़रिए बता सकते हैं, मैसेजेस टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है, एसएमएस कर सकते हैं, लेटर्स लिख सकते हैं. बट इसका पर्पस क्या है वो अलग है. अनलाइक इन ईमेल और मेमो,
A memo is a message you need to send to a large number of people, okay, a large group of employees, like your entire department or everyone at the company, ठीक है। entire department में जो employees हैं, जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कंसिडर करें, उनको आप रिमाइंडर देते हैं, ठीक है, उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो फिर आप मेमो लिखते हैं। यू माइट नीड टू राइट अ मेमो टू इन्फॉर्म स्टाफ ऑफ अपकमिंग इवेंट्स और ब्रॉडकास्ट इंटरनल चेंजेस। एक इवेंट को आप ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट में, तो फिर आप क्या करते हैं, अपने स्टाफ को, कलीग्स को, फ्रेंड्स को, फैकल्टी मेंबर्स को जब इन्फॉर्म किया जाता है, जिस सोर्स के जरिए इन्फॉर्म किया जाता है, उसको मेमो कहते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मेमोज एंड लेटर्स। मेमो राइटिंग में और लेटर राइटिंग में क्या डिफरेंसेस हैं। A memorandum, or shortly known as a memo, is a precise official note. Dear students, आप याद रखें, it is a precise official note. Precise means concise, brief, short, to the point. Used to inform. It is used to inform, direct or advise the members within the same organization. ये अब पर्पस है, ठीक है। मेमोरेंडम का शॉर्ट फॉर्म है मेमो, बहुत प्रिसाइज होता है, ऑफिशियल होता है, ठीक है। ऑफिशियल राइटिंग को कहते हैं, ये इस्तेमाल करते हैं हम ताकि हम इन्फॉर्म करें, डायरेक्ट करें और एडवाइज दें मेंबर्स को विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। हाउएवर द बिजनेस डील्स विद अ नंबर ऑफ एक्सटर्नल पार्टीज such as customers, clients, suppliers, government agencies, सोसाइटीज, डिफरेंट कल्चर्स के साथ। अब ये एक्सटर्नल है, मेमो क्या है, ये इंटरनल है, इंटरनल कम्युनिकेशन है, इनसाइड द सेम ऑर्गेनाइजेशन है। जब हम एक्सटर्नल लोगों के साथ कम्युनिकेशन को बरकरार रखते हैं, उनको हम जब इन्फॉर्म करते हैं या जब हम उनको अट्रैक्ट करते हैं, उनको कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं, तो फिर हम लेटर लिखते हैं, ठीक है। या बिजनेस पीपल, बिजनेस वर्ल्ड में जो लोग काम करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो क्या करते हैं, फिर लेटर्स लिखते हैं। उस लेटर को क्या कहते हैं, विच इज अ डिफरेंट टूल ऑफ कम्युनिकेशन इज यूज्ड, इज कॉल्ड बिजनेस लेटर, ठीक है, उसको हम बिजनेस लेटर कहते हैं। अब लेटर क्या है, अ लेटर रिफर्स टू अ ब्रीफ मैसेज सेंट बाय द कंपनी टू द पर्सन और एंटिटी विच आर आउटसाइडर्स। यस, जो आउटसाइडर्स होते हैं, इनसाइडर्स नहीं होते हैं, ठीक है, आपके डिपार्टमेंट के अपने लोग नहीं होते हैं, आउटसाइडर्स होते हैं, उनको आप फिर लेटर लिखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप याद रखें कि मेमोरेंडम हम लार्ज नंबर ऑफ पीपल के लिए लिखते हैं, मेमो, ठीक है, और लेटर जो है वो 1-to-1 कम्युनिकेशन, जब हम एक शख्स को, एक मतलब पर्सन को इन्फॉर्म करते हैं, तो फिर हम लेटर करते हैं, उसको हम मेमोरेंडम नहीं कहेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पर कंपैरिजन चार्ट है कि मीनिंग में क्या डिफरेंस है। जिस तरह कि अभी हमने पढ़ा कि मेमो रेफर्स टू अ शॉर्ट मैसेज, लेटर्स आर अ टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन दैट कंटेन्स कंप्रेस मैसेज कन्वेड टू द पार्टी एक्सटर्नल टू द बिजनेस। अच्छा, यहाँ पर मेमो क्या होते हैं, ये बहुत शॉर्ट होते हैं और ये इनफॉर्मल होते हैं टोन में, और ये इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। लेटर क्या होते हैं, ये टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन है that contains a compressed message conveyed to the party external to the business. External और internal एक डिफरेंस है। अच्छा, फॉर्मेलिटी, इनफॉर्मेलिटी को देखें, मेमो क्या है, ये इनफॉर्मल लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं, और कंसाइज इन प्रिसाइज लिखते हैं। फॉर्मल, अच्छा, लेटर क्या होंगे, लेटर की फॉर्मेलिटी, लेटर विल बी वेरी फॉर्मल एंड वेरी इंफॉर्मेटिव। यस, अच्छा, अब यहाँ पर सिचुएशन कहाँ कहाँ जाएंगे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, यूनिट्स आर सुपीरियर सबॉर्डिनेट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, जिस एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें हम क्या करते हैं, मेमोरेंडम सेंड करते हैं,
या सुपीरियर सबऑर्डिनेट को लिखेगा, ठीक है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, अब बिजनेस लेटर क्या है? टू बिजनेस हाउसेज आर बिटवीन द टू कंपनी, मतलब एक कंपनी से बाहर लेटर जाएगा दूसरी कंपनी में, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन से जब हम बाहर लेटर भेजते हैं तो इसको हम लेटर कहते हैं, मेमोरेंडम नहीं कहते, ठीक है जी। अच्छा, अब लेंथ का जिक्र करते हैं कि मेमोरेंडम विल बी वेरी शॉर्ट एंड लेटर्स आर कंपेरेटिवली लॉन्ग। कंपेरेटिवली अगर कंपैरिजन किया जाए ना मेमोरेंडम और लेटर में, तो लेटर्स क्या होंगे? वो लॉन्ग होंगे, और मेमोरेंडम मेमो बहुत शॉर्ट होते हैं। सिग्नेचर इज नॉट रिक्वायर्ड इन अ मेमो। यस, अनदर डिफरेंस डियर स्टूडेंट्स, हम सिग्नेचर नहीं करेंगे, सिग्नेचर इज नॉट रिक्वायर्ड इन अ मेमो, while in a letter signature is required by the sender। जो सेंडर होगा, जो भेजने वाला होगा, वो क्या करेगा? साइन करेगा अपने लेटर को। ओके, one to many, yes, another difference, memorandum is one to many, like एक फॉर एग्जांपल सुपीरियर है, बॉस है, वो सारे जो उसके सबॉर्डिनेट्स हैं, जो उसके नीचे काम करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल वीसी लिखते हैं, रजिस्ट्रार लिखते हैं आपकी यूनिवर्सिटी का, या कोई और डिपार्टमेंट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट लिखते हैं, जो उसके सारे क्या है, लेक्चरर्स हैं, जो टीचर्स हैं उनके यहाँ, उनको लिखते हैं। तो वन टू मैनी और वन टू वन ये क्या है? लेटर है, ठीक है। ओके, अनदर डिफरेंस डियर स्टूडेंट्स, यूज ऑफ टेक्निकल जार्गन। जार्गन आप समझते हैं, हम पढ़ चुके हैं कि यूज ऑफ टेक्निकल वोकेबलरी है, ठीक है। जार्गन मींस टेक्निकल वोकेबलरी। यूज ऑफ जार्गन एंड पर्सनल प्रोनाउन इज अलाउड। यस, इन मेमोरेंडम यूज ऑफ जार्गन, हम जार्गन यूज कर सकते हैं, टेक्निकल वोकेबलरी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है, विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन है। हम ये इज्यूम करते हैं, हम ये फर्ज करते हैं कि हमारे सारे जो एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं वो ये वोकेबलरी जानते हैं, ठीक है। वो इससे फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं फाटा, FATA, ये वर्ड आपके सारे जो इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं लोग, वो समझते हैं कि फाटा का मतलब क्या है, ठीक है। अब अगर आप बाहर बेचते हैं, कहीं और पर बेचते हैं, तो फिर आप फाटा को नहीं लिखेंगे, आप एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये टेक्निकल वर्ड है, आप सारा लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, पर्सनल प्रोनाउन का मतलब क्या है? पर्सनल, I, we, ये पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है, मतलब पर्सन को रेफर होते हैं कि आई विल बी अवेलेबल, आई विल बी, मतलब कंडक्टिंग अ मीटिंग, आप किसी को बताते हैं, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड, ये अगेन पर्सनल है कि यू आर रिक्वायर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड द मीटिंग इन माई ऑफिस, ठीक है। तो ये पर्सनल प्रोनाउन क्या है? लाउड है। सिंपल वर्ड्स आर यूज्ड एंड रिटन इन थर्ड पर्सन। यस, अच्छा, ऑन द अदर हैंड जब हम लेटर लिखेंगे तो हम सिंपल वर्ड्स यूज करेंगे, ठीक है। सिंपल वोकेबलरी, टेक्निकल जार्गन यूज नहीं करेंगे, जो जो स्पेसिफिक होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वो वर्ड्स हम यूज नहीं करेंगे। अच्छा, थर्ड पर्सन प्रोनाउन यूज करेंगे, थर्ड पर्सन, ही, शी, इट और दे यूज करेंगे, ठीक है। Now, dear students, I think definition is clear so far. The memo is a short for the memorandum, which means a note or record for any use in future. Yes, it is a short message used as a means of informal communication within the organization for transmitting information in writing. It may be titled as inter-office communication. Yes, inter-office, ऑफिस मेमोरेंडम भी इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। और ऑफिस करिस्पॉन्डिंग कह सकते हैं, रादर देन अ मेमोरेंडम, ठीक है। अच्छा, लेटर का डेफिनेशन क्या है डियर स्टूडेंट्स, कि अ बिजनेस लेटर कैन बी डिफाइंड एज द फॉर्म ऑफ राइटिंग written communication that contains a long message addressed to the party external to the organization. For example, supplier है, customers हैं, client है, manufacturer है, ठीक है। It starts with a salutation. Yes,
written professionally in the third person and has a complementary clause with a signature. Yes, ये बहुत ज़रूरी है कि आप लेटर को किस पे ख़त्म करें, सिग्नेचर पे ख़त्म करें. अब की डिफरेंसेस हम पढ़ चुके हैं कि बिटवीन मेमो एंड लेटर क्या है. मेमो कैन बी डिफाइंड इज अ शॉर्ट फॉर्म. डिफिनेशन इज सो फार क्लियर डियर स्टूडेंट्स. अच्छा, मेमोरेंडम, a memo use informal tone and a straight to the point. On the other extreme, letters are very formal and contain lots of information. The use of memorandum is internal to the organization in the sense that it is exchanged between two departments or units, are sent by the manager to the inform subordinates. As against memorandum or memo, the use of letter is external in nature, as it is exchanged between two business houses or between the two company or clients. When it comes to length, letters are lengthier uh, in comparison to the memo. Okay, dear students, there is no requirement of a signature in a memo as it is used within the organization. However, the letter is to be duly signed by the one who sends it. Memos are written to inform or direct our departments or members of number of employees, on a certain matter, and so it is usually written from one to all perspectives, such as a mass communication. Contrary to this, letters are private as it addresses to a particular party or client, so it is a form of one to one interpersonal communication. Yes, one to one communication भी आप कर सकते हैं. Dear students, technical jargons are commonly used in memos as well as uses personal pronouns. Yes, ये हम पढ़ चुके हैं. Unlike letters are avoid the use of technical jargons and terms which are not easy to comprehend, to understand. Okay. Moreover, letters are written in the third person. Dear students, अगर हम conclude करें so हम कहेंगे कि a memo is an essential tool for business communication which is used to transmit a particular information to many individuals working in the same organization. It has a great role to play in recording the day-to-day business activities and can be used for future reference. In contrast, letters are considered as the best mode of written communication that can be used for giving or seeking information to or from an external party. It helps to persuade the receiver to do as per the will of the writer. सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने मेमोरेंडम को डिफाइन किया, मेमो को डिफाइन किया, मेमो राइटिंग के पर्पस क्या है, रीजंस क्या है फॉर राइटिंग मेमो, and what are the advantages of memo writings, and then we have discussed that what are the differences between memo writing and letter writings. ठीक है, दोनों का नेचर क्या है, लेंथ क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, ठीक है, कहाँ कहाँ पर जाते हैं, ठीक है, कौन लिखते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, फॉर्मेलिटी इनफॉर्मेलिटी को हमने बयान किया. ठीक है. अच्छा, यहाँ पर एक और भी आप याद रखिए कि एक हम एप्लीकेशन लिखते हैं. लेटर, मेमो और एप्लीकेशन पर क्या है, एप्लीकेशन एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ लेटर है. ठीक है, मतलब लेटर की बहुत सारे टाइप्स हैं, पर्सनल लेटर्स हैं, बिजनेस लेटर्स हैं. ठीक है, एप्लीकेशन भी एक क्या है, एक फॉर्म ऑफ लेटर है. ठीक है, सो आप ये याद रखें. बहुत मतलब फ्यूचर में जब आप काम करेंगे, आप टेक्निकल राइटिंग लिखेंगे, ठीक है, किसी को आप मेमोरेंडम देंगे, किसी को इंस्ट्रक्शंस देंगे, तो फिर आप इससे हेल्प ले सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, आई विल गिव यू other lectures on the same topic. We will be discussing some examples of the memo writing.
Thanks for watching. Assalamu alaikum.